Hi dear students, welcome to business studies class. From forms of business organization, the fourth form of business organization, cooperative society. We have started the things about the cooperative society. In last video we have completed the topic what is being cooperative society and what are the features of cooperative society. So what is a cooperative society? So minimum 10 members or more than 10 members also, they are get together voluntarily and they are doing the work or they are doing the business to save the interest of their society, to save the interest of people. So that is the cooperative society. Okay, means minimum 10 number of people are joining together and they are doing their own business togetherly and joining in their business, that is on voluntary basis. No one going to do a compulsion on you, and how they are going to contribute their money. Suppose if they want XYZ amount of money, so they are describing a share price. So suppose for share price is 10 rupees. Okay, share price is 10 rupees and you should purchase that share and you can become a member of their cooperative societies. You can purchase a single share, means you can give 10 rupees. That means you purchase one share. You can give 100 rupees. That means you purchase a 10 shares. Means you can purchase one share or lot of shares, that is no matter. So there are types of shares also we will see in second year class. Okay. So just keep in mind, when you want to become a part or when you want to become a member of any cooperative society, what they are decided as a share price, you should purchase that share and you can become a member of that cooperative society. So minimum 10 members are required and registration is compulsory from the for cooperative society. So you can join as your wish, that is means voluntary basis it is. So according to your wish you can join and you can leave at any time. So you are joining and leaving the society, it is not affected on the work of the society. Okay. So when you want to join, you can join. When you want to leave that society, you can leave. Okay. And selection of authority, otherwise committee. Selection of committee means who are going to control this society work. So it is going to control by the board of director, otherwise you can call the committee members, and that committee members are going to selected by the voting authority given to the members. Means what? Suppose by 100 members they are joined together and they form one cooperative society. So by 100 members, from among that, suppose 3 people are interested to form the committee, otherwise what are the recognition posts are there to form, means to work on that 3 persons are interested. So total member of that society are 100. So these 100 people are going to give the vote to these 3. Okay, so who got, means according to the majority basis, who got high votes, they are become the superior. Okay, they are become the committee members, and that person is going to have the control over all the work or activities of that cooperative societies. Okay, all decision related with the cooperative society, that person is going to take a decision there. Okay, so that is the cooperative society. In today's video, we will discuss about the merits, that means advantages, or you can call benefits of cooperative society, and another content, that is the limitations, or you can call the disadvantages or demerits of cooperative society. So what is the merit? First one we are given. So equity in voting status. Equity in voting status means what? One man, one vote. One man, one vote, and capital contribution is not given importance here. One man, one vote. So what is the benefit, or you can call the merit of cooperative society, that is equity in voting status. Means how many members are there? All members have equal voting rights. Means 100 members are joined there. So each member have one voting right. Means one person have authority to give vote to one person only. That is one man, one vote. Okay, one man, 2 votes are not there. Means that person is going to vote, this person also, this person also. Okay, so one man, one vote, that vote can be either to this person
It is choice of yours. One man, one vote. So how our Indian voting systems are going to be running there? No, so according to that, the things are going to be run there. Okay. So one man, one vote. So rather than the capital contribution is not given importance. Means if you suppose when you want to become a member of any cooperative society, you should purchase the shares. You can purchase 1 share also, you can purchase 10 shares also, you can purchase 100 shares also. Suppose this person purchase a single share, means purchase only 1 share, means he is given only 10 rupees. See, the shares price it is 10 rupees. So this person purchase only single share, means he is given only 10 rupees for that cooperative society. The capital contribution of that person, it is 10 rupees. And another person who is richer, he purchased 10 shares. He purchased 10 shares, means he is given 100 rupees to their cooperative society. Means the capital contribution of this person is more than this person who is given 100 rupees and is given only 10 rupees. So rather than the capital contribution, there is importance to person. Means he have also one vote and he have also one vote, rather than giving the importance to the purchasing of shares, or rather than giving the importance to the capital contribution. तो इसका मतलब क्या है? इक्विटी वोटिंग स्टेटस, मतलब सबको समान हक के वोट करने का। एक आदमी को एक ही वोट मिलता है, एक आदमी 2-3 वोट नहीं कर सकता, वहाँ पे एक ही आदमी को एक ही वोट कर सकता है। आपको पता है, मतलब जब भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करते हो, मिनिमम आपको 10 पीपल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो 10 पीपल्स खुद की इच्छा से वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे मतलब प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस हो रहा है, इसका भी वो मतलब थिंक नहीं करते, उस किसी का भी विचार नहीं करते, वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स, मतलब लोगों का सेवा भाव से वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेंबर बनने के लिए क्या करना चाहिए? हम शेयर प्राइस डिसाइड करना चाहिए उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सपोज एक शेयर का प्राइस हमने 10 रुपीज डिसाइड किया, तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए हमें 10 रुपीज, मतलब एक शेयर्स परचेज, मिनिमम कम से कम एक शेयर्स परचेज करके उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम हिस्सा बन सकते हैं, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम मेंबर बन सकते हैं। सो सपोज इस आदमी के पास 10 रुपीज है, वो भी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, एंड इस आदमी ने 10 शेयर्स परचेज किया है, मतलब 100 रुपीज दिया है। इस आदमी ने सिर्फ एक ही शेयर परचेज किया है, मतलब 10 रुपीज दिया है। आप कितना भी शेयर्स परचेज कर सकते हो, उसके ऊपर लिमिटेशन नहीं है। यू कैन परचेज मोर देन 1 शेयर, ओके। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस कंपनी का आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हो, इट डिपेंड अपॉन यू। सो इस आदमी ने 10 शेयर्स परचेज किया, मतलब उसने 100 रुपीज उस कंपनी को दिया है। इस आदमी ने एक शेयर परचेज किया है, मतलब इसने 10 रुपीज इस कंपनी को दिया है। सो 1 man 1 vote, what is the meaning of it? So capital contribution is not given importance, मतलब इसने 10 रुपए दिया है, इसने 100 रुपीज दिया है, तो इसने ज्यादा दिया है करके इसको ज्यादा अथॉरिटी नहीं मिलेगा, उसको ज्यादा हक नहीं मिलेगा वहाँ पे। इस एक ही आदमी है ना, तो एक ही वोटिंग करना। मैंने 100 रुपीज दिया है, मैं 4 बार वोट करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। सो इसमें एक ही आदमी के ऊपर डिपेंड है, 1 man 1 vote। इसने कम कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है तो भी उसको 1 ही वोट, इसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है तो भी उसको 1 वोट वोटिंग अथॉरिटी। नहीं तो क्या होगा, इसको ज्यादा सी 2 इंसान इलेक्शन के लिए रुके और इसको 1 शेयर परचेज किया, मतलब इसको एक वोट देगा, और इसने ज्यादा परचेज किया करके इसको वोटिंग अथॉरिटी ज्यादा रहेगी तो वो एक ही आदमी को ज्यादा वोट डालेगा। So there will be such chances. So that's why, so जितने आदमी हैं उन सबको एक ही सिंगल वोटिंग अथॉरिटी रहती है। आप कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करो, कितना भी उस कंपनी को आप पैसा दे दो, बट आपको एक ही वोटिंग अथॉरिटी मिलेगी। आपने 10 रुपीज दिया तो भी आपको एक ही बार वोटिंग करने की अथॉरिटी। आपने 100 रुपीज दिया, दैट मीन्स यू परचेज 10 शेयर्स, आपने 10 शेयर्स परचेज किया तो भी आपको एक ही अथॉरिटी, मतलब एक ही बार वोट कर सकते हैं, ठीक है। So that is the capital contribution is not given importance, मतलब कितना पैसा दिया है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते वहाँ पे, कितने आदमी है, सब आदमी को एक वोटिंग अथॉरिटी रहती है। नहीं तो क्या करेगा, एक
एक ही आदमी 4 बार एक ही आदमी को वोट डालेगा, सो ऐसा नहीं हो सकता, एक आदमी है तो एक ही वोटिंग अथॉरिटी रहेगी। सो नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लायबिलिटी आती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। विदिन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करता है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड को-कॉन्सल्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। सो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब ये एडवांटेजेस है। सो लायबिलिटी अप टू देयर कंट्रीब्यूशन, मतलब जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, 10 रुपये दिया है तो उतना उसके लिए कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, उतना ही करना पड़ेगा। जितना आपने कंट्रीब्यूशन दिया है उतना ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा लोन चुकाने के लिए। सो लायबिलिटी का मतलब क्या है? फॉर बिजनेस पर्पस यू आर टेकन लोन फ्रॉम योर बैंक, सो इट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू पे द लोन ऑफ दैट, यू हैव टू पे द डेट्स ऑफ दैट लोन। मतलब बिजनेस के लिए आपने पैसा बैंक से लिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको लोन चुका पाए। सो जितना आपने कम कंट्रीब्यूशन दिया है, आपका पैसा आपने कम दिया है तो आप कम रिस्पॉन्सिबल हो वो लोन चुकाने के लिए, ज़्यादा दिया है तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आप रहेंगे वो लोन चुकाने के लिए। सो पर्सनल असेट्स आर सेट, तो यहाँ पे सपोज वो कंपनी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन चुकाने के काबिल नहीं रही तो भी आपके पर्सनल प्रॉपर्टी, क्या सोल प्रॉपर्टरशिप में क्या होता था, आप लोन चुकाने के लिए काबिल नहीं रहते थे तब आपके पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब कार, बिल्डिंग जो भी है वो सेल करके वो बेच के वो कर्जा चुकाना पड़ता था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी आप जितने भी मेंबर्स है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका पर्सनल असेट मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है, उसके ऊपर आप कुछ भी आँच नहीं आती, वो बेचने की नौबत नहीं आती वहाँ पे। सो दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब सबके ऊपर थोड़ी ही लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। So it is not affected on the personal properties. So एक एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस मतलब इस टाइप की कंपनी ज़्यादा दिन तक चल सकती है। स्टेबल एग्जिस्टेंस ज़्यादा दिन तक चल सकती है क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा हो गए, आप कभी भी छोड़ो कभी भी वो ज्वाइन हो लो, उसके मतलब उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, उसके कामकाज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। सो व्हेन यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन लीव द थिंग। सो सच थिंग्स आर नॉट गोइंग टू अफेक्टेड ऑन द कंपनीज वर्क। सो दैट्स व्हाई स्टेबल एग्जिस्टेंस मतलब ज़्यादा दिन तक ये कंपनी चल सकती है। सो डज नॉट अफेक्ट बाय डेथ, इंसैनिटी ऑफ मेंबर्स, मतलब कोई किसी भी मेंबर का डेथ हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, नहीं तो पागल हो गया, उसको जेल हो गया, सो कुछ भी हुआ तो कंपनी के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता। सो कम से कम 10 मेंबर्स होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर कितना भी रेट चल सकता है बट उन मेंबर को कुछ भी, मतलब एक मेंबर मर चुका है तो कंपनी के कामकाज के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। सो इसलिए वो कंपनी ज़्यादा दिन तक चल सकती है। बट सोल प्रॉपर्टरशिप में वो ओनर ही मर गया तो वो कंपनी बंद करवाना पड़ती है। पार्टनरशिप में एक पार्टनर मर गया तो दूसरे पार्टनर को फिर से नया एग्रीमेंट बना के वो कंपनी चलाने वाला है तो चला सकता है। बट यहाँ पे कुछ भी एग्रीमेंट और कुछ भी डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, वो मरा है तो छोड़ दो, द थिंग्स आर गोइंग टू बी रनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट एडवांटेज है इकोनॉमी ऑपरेशन। इकोनॉमी ऑपरेशन का मतलब क्या है? आप पैसे के हिसाब से देखो तो उसका कुछ भी कामकाज है वो बेनिफिट है, मतलब इकोनॉमी, कम पैसे में आपका काम उस कंपनी का काम हो सकता है। क्यों? रन बाय मेंबर्स, मतलब कौन कंपनी चलाता है? जितना भी आदमी इस कंपनी में कम से कम 10 लोग होना चाहिए। सो जितने भी आदमी हैं वो खुद ही कंपनी चलाते हैं, कोई न्यू पर्सन को अपॉइंट नहीं करते वहाँ पे क्योंकि उनको पेमेंट देने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। सो जो भी कंपनी के मेंबर है वही कंपनी का सभी कामकाज देखते, तो थर्ड पर्सन को सैलरी देने की आवश्यकता नहीं। सो जो भी इनका पैसा है वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। सो दैट इज द इकोनॉमी ऑपरेशन। सो नेक्स्ट, रिमूव मिडलमैन। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का यही मकसद है कि जो भी मिडलमैन्स रहते, मतलब अभी समझो, सो इट इज इंडस्ट्री एंड होलसेलर, रिटेलर एंड देन कस्टमर, मतलब जो भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट तैयार हुए हैं वो फर्स्ट होलसेलर लेके जाएंगे, उसके बाद रिटेलर और रिटेलर टू कस्टमर।
सो इंडस्ट्री और कस्टमर के बीच में ये दोनों मिडलमैन रहेंगे, होलसेलर एंड रिटेलर। सो कस्टम इंडस्ट्री में जितने प्राइस को प्रोडक्ट मिलेगा वो कम प्राइस रहेगा। सो होलसेलर को कम प्राइस में परचेस करेंगे, उससे ज़्यादा प्राइस में ये बेचेंगे, उससे ज़्यादा प्राइस में रिटेलर कस्टमर को बेचेंगे। सपोज कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म किया तो सपोज प्रोडक्ट मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का दुकान रहेगा तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली सपोज यहाँ के कस्टमर ने 10 लोग ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म किया तो एक क्या करेंगे, रिटेलर के पास जाने के बजाय ये डायरेक्टली कुछ भी प्रोडक्ट हो तो इंडस्ट्री से परचेस करके लाएंगे और उनके ही कस्टमर को वही प्राइस में बेचेंगे। वहाँ पे प्रॉफिट लॉस का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सेवा भाव से की हुई कंपनी है वो, और प्रॉफिट लॉस कुछ भी हुआ उसका हिसाब किताब वो ज़्यादा नहीं रखते। सपोज यहाँ पे वो प्रोडक्ट 10 रुपीज़ में मिलता है इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे 11 रुपीज़ में इसमें उनको मिलेगा। बट ये जो मिडल मैन है होलसेलर और रिटेलर, और 10 रुपीज़ का है तो ये 10 रुपीज़ को परचेस करके लाएगा, वो यहाँ पे 15 रुपीज़ में बेचेगा, वो यहाँ पे 20 रुपीज़ में बेचेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू डायरेक्टली गो टू द इंडस्ट्री, यहाँ का 10 रुपीज़ का यहाँ को 11 रुपीज़ को मिलेगा। सो जो भी ये मिडल मैन से वो रिमूव करता है, मीन्स रिमूव मिडल मैन। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब 10 लोग आके इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब डायरेक्ट कुछ भी प्रोडक्ट रहेगा, इनका एक दुकान है तो कुछ भी प्रोडक्ट रहेगा तो डायरेक्टली इंडस्ट्री से लेके आएंगे और उनके कस्टमर को बेचेंगे, क्योंकि उनका मेन मोटो है जन सेवा करना, सर्विस मोटो, लोगों का सेवा करना वो मेन मोटो रहता है। उसमें से वो लेस प्रॉफिट देते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे कितना पैसा जाता है बीच में, सो दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक। ज़्यादा पैसा गया बीच में तो नॉन इकोनॉमिक। सो यहाँ पे 20 रुपीज़ को उनको प्रोडक्ट मिलता था बट आपको 11 रुपीज़ में मिल रहा है। सो इट इज़ इकोनॉमिक, मतलब बेनिफिट है पैसे के हिसाब से। इससे देखो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कस्टमर को बेनिफिट है। ओके, सो दैट इज द रन बाय द मेंबर्स, क्योंकि ये मेंबर्स ही रन करते हो, ज़्यादा प्रॉफिट देखते नहीं वहाँ। सो दैट द थिंग। और जो भी नेक्स्ट वन जो भी मिडल मैन रहते हैं होलसेलर रिटेलर, वो भी रिमूव हो जाते हैं। सो इनको प्राइस देने के लिए डायरेक्टली इंडस्ट्री से ला कम प्राइस में आपके कस्टमर को बेचो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सपोर्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलता है सच काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। सपोर्ट मतलब कैसा सपोर्ट मिलता है, लो टैक्स रेट, जो भी आपकी कंपनी का टैक्स रेट पे करना है उसका प्राइस कम होता है। सब्सिडी मीन्स गवर्नमेंट ऑल्सो गिविंग अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर योर कंपनी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा मिलता है। नेक्स्ट लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, मतलब जो भी आप बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाहते हो उसके ऊपर कम ब्याज रहता है। सपोज हालांकि 10% दूसरे लोगों को देते हैं तो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आपको 8% रेट से लोन मिलेगा। सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन दिस टाइप ऑफ कंपनी स्टेबल करना, नहीं तो स्थापन करना ईजी है। कैसा, एक को 10 मेंबर लगते हैं, कम से कम 10 मेंबर तो मिलके बिजनेस चला सकते हैं। फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज, जो भी फॉर्मेलिटीज लगेगी इस टाइप के बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज रहेंगे। एक तो रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है, रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है इस बिजनेस के लिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 19 इट इज गवर्न्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। सो 1912 में एक मतलब कानून निकला वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए था। सो इसमें जो भी बेनिफिट था, मतलब लो टैक्स रेट रहेगा, नहीं तो सब्सिडी मिलेगा, वो सभी इस एक्ट से वो चल सकता है। उसमें डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं लगते। तो इस एक्ट में लिखा है कि समटाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो भी चलता है, इस एक्ट में ऐसा लिखा है, बट रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। So these are the merits of cooperative society. Just see what are the limitation, or you can call the demerits of cooperative societies. So next limitations of cooperative societies. First one, limited resources. मतलब उनके पास कम पैसा रहता है। Limited resources means limited capital. So why limited capital? See, more than 10 people also can join to that cooperative society, but उनके पास पैसा क्यों रहता है? क्योंकि capital contribution is limited. क्योंकि सबके पास से पैसा हम immediately contribute कर सकते हैं, मतलब उनको फोर्स नहीं कर सकते कि इस बिजनेस में इतना रिक्वायरमेंट है आप इतना पैसा डालो,
ऐसा हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी वहाँ पे। सो इसलिए उनके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कम पैसा रहता है। तो इसकी वजह से देयर आर द चांसेस टू क्लोज दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, सो इसकी वजह से वो बंद करने की भी नौबत आती है, बट कम पैसा होने की वजह से। क्योंकि सपोज 10 पीपल है तो उनके ऊपर हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि बिजनेस में इतना पैसा डालें। उनकी इच्छा कितना है, कितना शेयर्स परचेज करना चाहते हैं उतना ही वो कर सकते हैं, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता वहाँ पे। सो इसलिए उनके पास पैसा कम आता है। सो लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लो रेट ऑफ डिविडेंड। लो रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या है? सपोज आपने शेयर्स परचेज किया, सपोज एक शेयर्स का प्राइस 10 रुपीज़ है। ओके, एक शेयर्स का प्राइस 10 रुपीज़ है, दैट मीन्स 1 शेयर। सो इसके ऊपर डिविडेंड करके रहता है। डिविडेंड करके मतलब आपने 10 रुपये उस कंपनी को दिया है, तो आपको पर ईयर सपोज 2% डिविडेंड में तो 2% डिविडेंड आपको मिलेगा। 2% डिविडेंड आपको मिलेगा। देखो आपने एक शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ है, सो आपको 2% में तो 20% वो डिसाइड वो कंपनी करती है आपको पर ईयर कितना देना है, उसमें से कितना देना है आपको। सो 20% डिविडेंड फिक्स किया तो मतलब एक अमाउंट फिक्स करता है शेयर प्राइस को, एक अलॉन्ग विद डिविडेंड एक अमाउंट फिक्स करना चाहता है। मतलब आप हमारी कंपनी को 100 रुपीज़ देंगे तो पर दर साल हम आपको 20 रुपीज़ देंगे जब तक कंपनी है तब तक। मतलब एक ही बार आपको शेयर्स परचेज करना है। इस साल आपने शेयर परचेज किया 100 रुपीज़ दे के, तो दर साल मतलब कितना साल तक वो कंपनी चलेगी उतने साल तक आपको 20 रुपीज़ मिलेगी। दैट इज द डिविडेंड। वो डिसाइड करते हैं कि इनिशियल पॉइंट ओनली उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर वो डिसाइड। वो कंपनी लॉस में आई है तो भी उनको डिविडेंड देना ही पड़ता है। मतलब आपने 100 रुपीज़ का एक शेयर परचेज किया है तो आपको 20 रुपीज़, जिन्होंने भी शेयर परचेज किया है उनको 20 रुपीज़ दर साल देना ही होगा, उसको हम डिविडेंड करते हैं। सो लो रेट ऑफ डिविडेंड, तो ये तो हाई रेट हुआ, तो इसका रेट कम होता है। मतलब 2% ही देते हैं, 100 रुपीज़ दिया तो दर साल आपको 2 रुपये ही मिलेंगे वहाँ पे। सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज, मतलब कम डिविडेंड रहता है। वही शेयर्स आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में परचेज किए तो 100 रुपीज़ को 20 रुपीज़ डिविडेंड देते हैं। तो इससे एक ज़्यादा है एक कम है। सो दैट्स वाई लो रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब हमने शेयर परचेज किया है उस कंपनी का, मतलब उस कंपनी में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से हमको थोड़ा बहुत हिस्सा मिलेगा, उस हिस्से को हम डिविडेंड करके बुलाते हैं। मतलब एक शेयर को कितना हिस्सा मिलेगा उस कमिटी मेंबर डिफाइन करती है, दैट इज द डिविडेंड और द पॉइंट। सो सपोज इफ योर डाउट प्लीज आस्क मी विद इन द लाइव क्लास। So next, inefficient in management. Inefficient in management means what? Voluntary members are not expert in all the work. So जो भी कामकाज है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और सभी कामकाज जितने भी लोग उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हैं वही लोग कामकाज देखते हैं। तो वो उस काम में जो भी मैनेजमेंट का काम है उस काम में एक्सपर्ट नहीं होते, क्योंकि वो खुद से उसको ज्वाइन हुए, दे आर नॉट हैव पर्टिकुलर एजुकेशन विद देयर फील्ड। सबको सब काम आएगा ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते, सब एक्सपर्ट नहीं रहते। बट उनके पास मतलब एक्सपर्ट रखने के लिए, जो भी इस काम में एक्सपर्ट है उसको काम पे रखने के लिए हमें सैलरी तो देना पड़ेगा, उसको पेमेंट तो देना पड़ेगा। वो पेमेंट देने के लिए भी उनके पास इतना पैसा नहीं रहता। सो दैट इज द इनएफिशिएंट इन मैनेजमेंट। सो पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं रहता, इसलिए वो खुद ही कामकाज देखते हैं उस बिजनेस का। मतलब जो भी मैनेजमेंट एक्टिविटी रहेगी, परचेजिंग, सेल्स, प्लानिंग, कुछ भी एक्टिविटीज रहेगी वो खुद ही देखते हैं, तो उसमें तो सभी एक्सपर्ट नहीं होते। सो दैट्स व्हाई इनएफिशिएंट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी, मतलब जो भी बिजनेस का इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट नहीं रहता वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि ओपन मेंबरशिप है वहाँ पे। सो ओपन डिस्कशन, सो जो भी डिस्कस करना है वो सबके साथ करना पड़ेगा, कम से कम 10 लोगों के साथ तो करना पड़ेगा। उसके बाद कितने मेंबर जुड़े हुए हैं उनकी सबकी एनुअल मीटिंग लेना पड़ता है। सो जो भी डिस्कशन करना है वो ओपनली डिस्कशन करना है। सो सबको बताना पड़ेगा वहाँ पे क्या डिसीजन लेना है। सो वहाँ पे सीक्रेसी नहीं रहेगी।
वो जाके किसी को तो बताए, 10 लोग जाके 10 लोगों को बताएंगे, वो 10 लोग और 10 लोगों को बताएंगे, तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, ओपन डिस्कशन रहता है। सो इसकी वजह से वो बिजनेस प्रॉब्लम में भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है सो नेक्स्ट लिमिटेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, दैट इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन सो मे लीड डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। सी within the cooperative society there are n number of people are joining together, so minimum 10 people रहते हैं, उससे ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं। सपोज मीटिंग लिया, एक कौन सा तो डिसीजन लेना है, उसके ऊपर सबको बुला के मीटिंग लेना पड़ता है, तो सबका अलग अलग विचारधारा होता है वहाँ पे, तो सबका अलग अलग मतलब किसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए वहाँ पे। सो मोस्टली द डिसीजन बेस्ड ऑन मेजॉरिटी बेसिस। ओके, द डिसीजन इज गोइंग टू टेकन बाय द मेजॉरिटी बेसिस बाय कमिटी मेंबर, मतलब जिसने भी ज़्यादा लोगों ने ये डिसीजन ले लो करके बोला है, सो वो ज़्यादा लोग किसके लिए वोटिंग किए, ज़्यादा लोग किसकी क्या बोल रहे हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। बट मे लीड डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सबका विचार अलग अलग होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, सो उस काम में डिसीजन लेना है तो वो प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब नहीं तो तकलीफ आ सकता है, डाउट मतलब क्या डिसीजन लेना चाहिए वो प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट इज द डिफरेंस इन ओपिनियन, क्योंकि सबका विचार अलग रहेगा, तो किसके हिसाब से डिसीजन लेंगे, सो दैट इज द डिफिकल्टी। एंड लास्ट लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब आपके बिजनेस में गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, मतलब फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बोला है आपके कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता, आप खुद ओनर हो, खुद भी डिसाइड करो, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरफेयर नहीं होता। पार्टनरशिप में भी कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे आपका अकाउंट दिखाना नहीं पड़ता, जो भी आपने खर्च किया है, जितना भी इन्वेस्ट किया है, वो गवर्नमेंट को दिखाना नहीं पड़ता। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लाइक ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, जो भी आप अकाउंट्स लिखते हो अकाउंट्स क्लास में, मतलब कितना क्रेडिट हुआ, आपके पास कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना डेबिट हुआ, वो आपको अकाउंट लिखना पड़ता है और वो सबमिट भी करना पड़ता है। सो गवर्नमेंट उसका ऑडिटिंग करती है, सो इसमें कहाँ तो करप्शन होगा तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगा। सो दैट्स व्हाई दिस थिंग्स शुड बी क्लियर हियर, मीन्स गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। बाकी तीन जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है और पार्टनरशिप है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी हस्तक्षेप बोलते हैं वो नहीं रहता। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रहता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन और सबमिशन ऑफ अकाउंटिंग वो सभी आपको करना पड़ता है। दैट इज द कंपल्सरी थिंग, मतलब कितना आपने इन्वेस्ट हुआ है, कितना खर्च हुआ है, वो सब गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। ओके, सो दिस आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो इफ यू हैव एनी डाउट वी विल क्लियर द थिंग्स विद इन द Google Meet class. Okay, so thank you so much. Bye bye, take care.